భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో సెంచరీ కొట్టబోతోంది. పిఎస్ఎల్వి C-40 రాకెట్ ను నింగిలోకి దూసుకెళ్లబోతోంది. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. कल्पना ही रह जाती, केवल 50 सेकंड की दूरी. Minus 50 seconds. Sequences around. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. PS2 VHPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VHPP open. Minus 20 seconds. बेहद नजदीक. Minus 15 seconds. RCT pyro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 seconds. Liftoff normal. सामान प्रक्षेपण. PSLV लगातार हमसे दूर जाता हुआ तार प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण अनंत आकाश की नीरवता अटूट गर्जना से चीरता हुआ लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर भारत का ये यान. घोषणा सारे विश्व के नाम भारत के निशान की ओर ऐसे संदेश सुनाना चाहता हूँ. सफलता के आसमान असीमित है और वसुदेव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों का ये मूल मंत्र हमारे जीवन का शायद इसीलिए PSLV यान प्रक्षेपण हेतु मानव निर्मित किन्हीं सीमाओं को न मानता है न जानता है. वो इन सब से परे सिर्फ समझता है तो अपने निर्धारित मापदंड स्ट्रैप-ऑन्स अलग हो चुके हैं सफलतापूर्वक. इस समय एल्टीट्यूड करीब 40 किलोमीटर एंड जो ग्राउंड लिट थे वो सेपरेट, जो एयरलिट strap-on separated. वो भी अलग हो चुके हैं. 92 सेकंड्स का समय बीत गया है. स्ट्रैप-ऑन्स जो हवा में प्रज्वलित हुए थे वो भी अलग हो चुके हैं. इसके बाद कुछ ही क्षणों में फर्स्ट स्टेज या प्रथम चरण जो है वो अलग हो जाएगा. First stage separated. जी हाँ, फर्स्ट स्टेज भी सेपरेट हो चुका और द्वितीय चरण जो सेकंड स्टेज है वो भी इग्नाइट हो चुका है 109.2 सेकंड्स के बाद. इस समय 86 किलोमीटर का रेंज और ऊंचाई लगभग Second stage performance normal. अभी तक का परफॉर्मेंस जो निष्पादन है वो पूरी तरह से सामान्य. ऊंचाई करीब 99 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहुंचती हुई 140 सेकंड का समय बीत चुका हुआ. द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह से सामान्य. आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर 109.2 सेकंड्स पे जो द्वितीय चरण जलत और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था. हीट शील्ड का पेलोड फेयरिंग का यान से सफलतापूर्वक अलग होना. आपको याद दिला दें कि यही वो घटना थी जिसने पिछले अभियान को, पिछले मिशन को सफल नहीं होने दिया था, लेकिन ये अलग हो गई. और इस समय हम प्रतीक्षा कर रहे हैं सेकंड स्टेज के सेपरेशन की. द सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल is performing normal at approximately 170 seconds. Payload fairing was separated from the vehicle. The internal view of the mission control system, Mr. Mission Control Center, Range Operation Director giving the detail. Second stage performance normal. The performance is normal. Almost 215 seconds time is elapsed with a relative velocity of around 3 km per second. Range is 288 km and altitude is 191 km, while azimuth is 153.8. This is the parameter which is obtained. The internal view
सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक, plus 4 minutes. विदेशी ग्राहक, foreign Second stage customers, performance normal. they are observing the flight. Very happy moments because the performance is very satisfactory. Maybe shortly we can hear the announcement of the PS2 separation. Second stage engine shut off. Third stage ignited. जी हाँ, दूसरा चरण अलग हो गया और थर्ड स्टेज भी ignited हो गया. You can see the range plot in the screen after some Third time stage performance normal. that the vehicle is going eastward nominally. We require very high orbit inclination of approximately 96 degree for Cartosat. So the vehicle will be maneuvering to get this desired inclination. This is what you are observing. In fact, various co-passengers too prefer this inclination, so there is no big issue in injecting these many satellites into the same orbit. During the coasting phase, basically vehicle will be simply climbing the altitude but losing the velocity, means kinetic energy and potential energy is being shared. Very close match between pre-flight and observed Third flight stage data, performance as you can normal. observe here. Range Operation Director. All eyes on third stage separation. It's bit away. तृतीय चरण प्रमोचन के 264 सेकंड के बाद लगभग प्रज्वलित होता है, जो परंतु तृतीय चरण के पृथक्करण के समय यान 335 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पहुंच जाता है और इस पृथक्करण के समय वेग का मान 7.54 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है. इस चरण का प्रज्वलन काल लगभग 320-324 सेकंड का होता है. हम काफी नजदीक थर्ड स्टेज के Plus 6 minutes. सेपरेशन के. अभी तक निष्पादन पूरी तरह से Third stage सामान्य. performance normal. वो यान को करीब करीब इस समय हम 340 किलोमीटर Third ऊंचाई stage पहुंच action चुके हैं. complete. Vehicle in coasting phase. वरिष्ठ वैज्ञानिक राकेश जी, अंतरिक्ष के डायरेक्टर, पूर्व केंद्र निदेशक शार के, वीएसएससी के, एसयू के, आप देख पा रहे होंगे इन्हें अपने स्क्रीन पर. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर अगले क्षण की घोषणा करने को तत्पर. Vehicle combined coasting normal. कोस्टिंग पूरी तरह से सामान्य. तृतीय चरण के ज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व निःशक्ति समय या कोस्टिंग पीरियड जिसे कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. उड़ान अनुक्रम का निर्धारण प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके. उड़ान के इस निःशक्ति समय के दौरान रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है ताकि निःशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण को कुछ सेकंड के बाद प्रज्वलित किया जा सके. ये अंतिम Vehicle चरण coasting normal. लगभग 500 to 6 सेकंड तक का होता है. अभी तक का निष्पादन पूरी तरह से सामान्य. आप अपनी स्क्रीन पे जो ग्राफ देख पा रहे हैं, अनुमानित और अवलोकित पथ एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो करते हुए. वी आर वेरी क्लोज मैच ऑफ observed data with the estimation, and we are very close to the most important event awaited is the fourth stage ignition. Before that, the third stage gets separated. Is very important mission for us. We will be Third stage separated. Yeah, third stage got separated at 494.8 seconds. As expected, performance is perfectly normal. 505. Fourth stage ignited. And fourth stage got ignited. This is the stage which is carrying the 31 satellites along with that to put into the orbit at desired altitude, desired location, desired orbit. Now we are almost Fourth stage performance normal. We are almost completed 530 seconds. Performance is perfectly normal. The relative velocity what we are getting as on now is 5.96
kilometer per second with a range of 1796 kilometer, altitude is 470 kilometer close to. परफॉर्मेंस पूरी तरह से नॉर्मल। चौथे चरण के प्रज्वलन के बाद जो काल है उसे तब टर्मिनेट किया जाता है जब जितनी भी अभीष्ट आकलन है, जितने भी अभीष्ट जानकारियां हैं, वो आंकड़े हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सके। Fourth stage performance normal. सारा निष्पादन चौथे चरण का पूरी तरह से जैसा अपेक्षित था वैसा रहा। पूरे तीनों जो चरण थे उन्होंने जैसी हिम्मत देनी थी चौथे चरण को वो दी, और चौथा चरण अपने गंतव्य तक, ताकि उपग्रहों को यान से उनकी कक्षा में छोड़ा जा सके, अलग किया जा सके। इस समय हम 10 minutes. लगभग Fourth stage performance normal. 10 मिनट का समय व्यतीत कर चुके हैं और करीब करीब चौथे चरण के अंत में पहुंचते हुए केंद्र निदेशक एलपीएससी के, जो आईपीआरसी के, जो विभिन्न गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। The data which you are getting is about 2,345 kilometers range with altitude of 500 kilometer, and inclination is yet to be obtained after fourth stage injects into the orbit. The ground trace on the right side by range versus altitude on the left side graph. Dr. Annadurai, Dr. Tapan Mishra, Dr. Somnath, Fourth stage विभिन्न performance केंद्रों के normal. निदेशक जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक दिशा देते हैं। सामान्य निष्पादन प्रारंभिक कक्षा में अंतःक्षेपण या इंजेक्शन के पश्चात उपग्रह में लगी दोनों सौर पट्टिकाएं पूर्व नियोजित व समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी। कार्टोसैट 2 उपग्रह को कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित स्ट्रैक भूकेंद्र अपने नियंत्रण में ले लेगा। ये तब होगा जब कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह को 505 किलोमीटर की वृत्तीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया जाए, Fourth stage performance normal. जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 97.47 डिग्री से झुकी हुई है। परफॉर्मेंस पूरी तरह से नॉर्मल। आज जो देरी हुई उसका एक विश्लेषण किया जाता है जिसे हम अंतरिक्ष वस्तु निकटता या प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस भी कहते हैं, ताकि इस बात की पुष्टि किया जा सके कि प्रमोचन को होने या न होने में कोई त्रुटि तो नहीं आएगी। इस विश्लेषण का आधार है संघट या टकराहट का खतरा। कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से या डेब्रिस से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, और इसी के कारण हमने 1 मिनट की देरी की आज के यान में। ऐसा पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा PSLV C-19 RISAT-1 में, PSLV C-20 सरल में जब 1 या 2 मिनट की देरी की गई थी। The various stages get separated. The performance of fourth stage is normal. The spent stages of a multi-stage launch vehicle are separated from the main vehicle once their useful purpose is served. The separation should be smooth and collision-free under all possible circumstances. Separation events are mission critical and utmost important. PSLV employs various separation systems. The first stage separates from the vehicle using flexible linear shaped charge, FLSC and retro rockets, then imparts the separation velocity. The various parameters being monitored at different screens in the mission control centers, that what you are observing. Fourth stage performance normal. So far, the fourth stage performance is perfectly normal. We have spent approximately 833 seconds time
by crossing almost 3,570 plus 14 minutes. kilometer range and altitude. We touched 516 kilometer. The heat shield halves are separated by linear bellows systems, exposing cord which is encased in a piston cylinder assembly. Marman band bolt cutter separation mechanism used for PS2, PS3 separation. The PS3, PS4 separation uses ball release type mechanism, pyro thruster, providing the necessary rotation to the separation ring. The Cartosat 2 series satellite separation from the vehicle is based on Marman band systems. So the Fourth stage performance normal. fourth stage performance is perfectly normal. जैसा कि अभी आपने उद्घोषणा सुनी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर की, हम बहुत निकट अभीष्ट पैरामीटर के प्राप्त होने के बाद, आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद किसी भी क्षण चौथे चरण को अलग कर दिया जाएगा या उसका प्रज्वलन बंद करके उपग्रह को यान से पृथक कर दिया जाएगा। हम उसी घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए 910 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। लगभग हमें 996.8 सेकंड का समय व्यतीत करना है। जब कार्टोसैट 2 सीरीज का उपग्रह पृथक होगा, वो समय होगा करीब 1038.8 सेकंड। Fourth stage performance normal. अभी तक परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल। हम कुछ ही 30-40 सेकंड की दूरी पर, अब हम बहुत नजदीक पहुंचते हुए उस घड़ी के जब उपग्रह यान से पृथक हो जाएंगे। लगभग 950 seconds has elapsed. Range what we touched is 4,340 kilometer and altitude is 509.6 kilometer. Orbit what we want to achieve is 505 kilometers. So we are very, very close. And the parameters what we are looking for is now almost coming closer. Inclination is 97.35, perigee is 82, apogee is 507 kilometer, 506.7 kilometer. Very close. Any moment the declaration, the उद्घोषणा आ जाएगी, आप सुन पाएंगे। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर कड़ी निगाह रखे हुए आंकड़ों पर। मुश्किल से 1-2 सेकंड। Fourth stage engine shut off. फोर्थ स्टेज यूनिट को बंद कर दिया गया है। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही आंकड़ों की प्राप्ति होगी, जैसे अभीष्ट आंकड़े प्राप्त कर लिए जाएंगे, इंजन को बंद कर दिया जाएगा चौथा चरण को। और अब केवल इंतजार है उस घड़ी का जब उपग्रह कार्टोसैट 2 सीरीज का उपग्रह पहले यान से पृथक होगा। आप राइट हैंड साइड के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शायद वो दृश्य चला गया है आपके स्क्रीन पर मैं बाकायदा देख पा रहा हूं, जो बहुत ही क्लोज व्यू जब उपग्रह को कार्टोसैट 2 सीरीज का उपग्रह अलग हो गया है 1040 सेकंड के बाद। और इसके कुछ ही क्षणों के पश्चात जो DLA V4 वर्जन 4 है वो अलग होगा और ये भी उपग्रह अलग होने की कगार पे। आप इसे अपने स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में देख पाए होंगे। हर्ष की लहर चारों तरफ। Leo prototype satellite separated, POC1 satellite separated. अब एक के बाद एक अनेक विदेशी जो उपभोक्ता हैं उनके उपग्रह अलग होते चले जाएंगे। 28 उपग्रह हैं और सबसे अंत में माइक्रोसैट भारत के उपग्रहों का पहला शतक जो पूरा करेगा वो अलग होगा। लियो P1 सेपरेट हुआ, अब सारे उपग्रह एक के बाद एक सेपरेट हो जाएंगे। बड़ा अच्छा होता अगर आप इसे अपनी आंखों से अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होते, जैसा मैं देख पा रहा हूं मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर, क्योंकि एक कैमरा यान पे लगा हुआ है जो बाकायदा उस दृश्य को हम तक पहुंचा रहा है, एक के बाद एक उपग्रह यान से पृथक होते हुए। उपग्रह कार्टोसैट को 5 वर्ष के लिए अभिकल्पित किया गया है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर नित नए कीर्तिमान गढ़ना न केवल चुनौतीपूर्ण होता है बल्कि बेहद रोमांचकारी भी। मुझे यकीन ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आज जो नजारा, जो परिदृश्य आपकी आंखों ने देखा होगा वो अविस्मरणीय रहा होगा।
आने वाला वर्ष ऐसा अनेक प्रक्षेपणों से भरा हुआ होगा। फ्रेंच गुयाना से आप GSAT-11 का प्रक्षेपण देखेंगे, जो भारत का अब का सबसे भारी उपग्रह है। जी हाँ, सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक बेहद खुश। ये वर्तमान और आने वाले चेयरमैन भारत के अंतरिक्ष विभाग के किरण कुमार सर और डॉक्टर शिवन आपस में शायद ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जैसी सफलता इसरो ने अभी तक हासिल की उससे कहीं आगे इसका रास्ता बनता है। हमें देश को नई सीमाओं, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। GSAT-6 से बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 2 जिसमें लैंडर और रोवर होगा, IRNS-1I जो पिछले फेल्योर्स के बाद उसका रिप्लेसमेंट होगा। ऐसे अनेक उपग्रह आने वाले वर्ष में अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ेंगे। ये सारी बातें आपसे कहने का अर्थ केवल इतना है कि देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो पूरी तरह से संकल्प और दृढ़ है। बाकायदा सारे फॉरेन डेलीगेट्स जो यहाँ पे MCC में अपने उपग्रहों के प्रतीक्षा में, अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के सेपरेशन की प्रतीक्षा में, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे कैमरामैन फॉरेन डेलीगेट्स को दिखा पाएं। ये हैं वो विदेशी उपभोक्ता, फॉरेन डेलीगेट्स USA से, फिनलैंड से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से, जो हमारे साथ जुड़े, शायद कल नई संभावनाओं के साथ इसरो के साथ जुड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये घड़ियां जो हमें नई दिशाएं देते हैं। 21 minutes. अगले कुछ ही क्षणों में हम पृथक्करण की प्रतीक्षा में, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर के उद्घोषणा के बाद इस ट्रांसमिशन के में महत्वपूर्ण घड़ी आएगी। इस समय 1280 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका। The range we have achieved is 696. Of course, that does not have any meaning now because that these vehicle parameters does not mean anything per se for the Carter 2. These are the graphs, or these are the screens which are fitted inside the mission control center, which we observe, and looking at these data we give you the commentary. शाह डायरेक्टर कुन्नीकृष्णन जी चेयरमैन के बिल्कुल बगल में, उसके बाद आने वाले भारत के अंतरिक्ष विभाग के चेयरमैन शिवन सर बैठे हुए, सोमनाथ जी, तपन मिश्रा जी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के, डॉक्टर अन्नादुरई इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर के निदेशक। इसरो अनेक केंद्रों में बटा हुआ सारे भारत में जिसका विस्तार है, सारे केंद्र के निदेशक अपने अपने केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ, युवा वैज्ञानिकों के साथ आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा कोई भी अवसर नहीं गंवाते जब उन्हें भारत को आगे पहुंचाने के लिए नए कदम उठाने में कोई कमी रह जाती हो। ये वो वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार पिछले शार के वैज्ञानिक जिन्होंने लगातार विगत कई दिनों से इस यान को इस स्तर तक पहुंचाने में बेहद अहम रोल निभाया, इस ट्रैक के वैज्ञानिक। अगली पंक्ति में ऐसी कई पंक्तियां हैं जिसमें पूरे इसरो से विभिन्न केंद्र के वैज्ञानिक लगातार आंकड़ों पर नजर रखते हैं। द फ्लाइट पैरामीटर PSLV C40 in the world map which is seen here is, this is what you can look at me, what I'm giving you the commentary alone this time. With me there is no my co-commentator in the English, so I'll be giving the both commentaries in English and Hindi to all my viewers throughout the country as well as throughout the world. I wish you very, very happy New Year with a gift from ISRO. The seniors which are continuously observing, probably we all are waiting for the separation of
a few more satellites, and we will be going for next TYVA की 61 separation, CBNT NT2 separation, INS-1C separation, CICERO 7 separation, QP 1.1, 5.1, 5.4, 5.2, 5.3, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 separation. So these are the series of the foreign satellites. So as I mentioned, there are 3 micro and 25 nano satellites from the foreign delegates. These are all pipelined for the separation from the 4th stage, one by one. And this entire scenario, probably if you can just look at it, approximately takes 300 seconds to complete the event. When Carter 2 series satellite was separated, it was 1038.8 seconds, and when the last separation of the foreign delegates will complete, it will be 1351.8. Subsequent to that, the 4th stage will be reignited twice to bring down the altitude from 505 kilometers to close to 359 kilometers. That will be the altitude for our microsat satellite. So ideally, the all conditions are perfectly normal. We have to spend a few more moments for this. रेंज ऑपरेशन डायरेक्शन, बड़ी बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए जब हम बहुत ही शार्टली फॉरेन कस्टमर्स के कुछ और उपग्रहों को यान से पृथक होता हुआ देख पाएंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे श्रीहरिकोटा रेंज अर्थात शार के नाम से भी जाना जाता है, इसरो का अकेला ऐसा केंद्र है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में समुद्र किनारे स्थित है, जो पुलिकेट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। एक छोटा गांव था जिसे 1969 में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त पाया गया। This is a very close view of Mission Control Center, where all the senior scientists, senior engineers, they are observing this unique mission where the 4th stage will be ignited, reignited, reignited. So reignition will be twice to bring down the altitude. शार सेंटर की भौगोलिक स्थिति, solar panels have started generating power. Receiver lock taken place. SPS system already tracking 5 GPS satellites. All nanosat separations confirmed. Okay. Over to mission director. All nanosatellites have been separated, and the Cartosat 2 satellite series is generating the power. It is tracking the sun, and Sadanand Rao, who is the project director, announced that. I'm very happy to announce the successful accomplishment of PSLV C40 Cartosat 2 series mission. The completion, इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ लगातार बने रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आइए हम आपको इस समय अभियान नियंत्रण केंद्र मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर बिखरे उत्साह में शामिल होने के लिए सीधे वहीं लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो हेलो।